A very good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to your ELGA class. I am your teacher, Kalpana Chauhan. Students, in last class, we completed our story Lunchbox. I hope you all are like that story, right? So in today's class, we will start a new story, and the name of our story is Same or Different. But before starting our story, let's look at the mind map for when our needs are met or when our needs are not met. Means, what are the feelings when your needs are fulfilled and what are your feelings when your needs are not met. Okay, so here look at this slide. What are your feelings when our needs are met? So students, what you feel when your needs are met? Yes, our feelings are like eager and happy. You feel happy or excited when your needs are fulfilled. Okay, like you need a chocolate and your father gives you a chocolate, means your need is fulfilled. So you feel happy and excited. And what happens if your needs are not met? Yes, you feel annoyed and upset. Okay, students? Now look at these vocabulary words for your story. Our first word is groaned. First word is groaned. The meaning of groaned is complained. Okay? Our second word is slithered. The meaning of slithered is moved by twisting and sliding. Our third word is crescent. Crescent. The meaning of crescent is a curved shape that has two narrow pointed ends. See here, the meaning of crescent is a curved shape that has two narrow pointed ends like a moon. Here you can see the moon has a curved shape with two pointed ends, right? Our next word is sputtered. Sputtered. The meaning of sputtered is said with a spitting sound. Our next word is sobbed. The meaning of sobbed is cried noisily, making loud sounds. Our next word is, and last one is, frowned. The meaning of frowned is brought your eyebrows together so that there are lines on your forehead to show that you are annoyed, focused or worried. Here you can see when you brought your eyebrows together, there are lines on your forehead. Okay, so it is called frowned. Now let's get started with our story Same or Different. It is written by Rupa Pai. Mama put Sparrow's lunchbox into her school bag and folded her wings around her. Have a good day, darling, she said. And remember, said Mama, stay away from Snake. He is different. Sparrow wished Mama hadn't said that. Snake was her best friend. His people eat our people, she always said. Sparrows and snakes can never be friends. On the other side of town, Snake's papa was packing his lunchbox with birds' eggs. Today's special, son, he said proudly. But I hate eggs, Papa, groaned Snake. We always eat snacks, said Papa sternly. Now off you go. And remember, stay away from Sparrow. Snake slithered away, feeling angry. Sparrows are different, Papa called after him. You can't be friends with your food. See beta, this story is about a snake and a sparrow. क्या होता है, एक स्पैरो होती है
ठीक है। स्पैरो की मम्मा उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करती है और उसके स्कूल बैग में रख देती है। और स्कूल बैग में जब वो लंच बॉक्स रख रही होती है स्पैरो की मम्मा, तो उसकी मम्मा उसे क्या कहती है कि हमेशा याद रखो बेटा, तुम्हें स्नेक से दूर रहना है। ठीक है, तुम्हें सांपों से दूर रहना है, वो डिफरेंट होते हैं, वो हम लोगों से डिफरेंट होते हैं। अब स्पैरो अपने मन में क्या सोच रही होती है कि मम्मा ऐसा ना बोला करें। क्यों? क्योंकि स्पैरो का जो बेस्ट फ्रेंड होता है स्कूल में वो कौन होता है? एक स्नेक ही होता है। ठीक है। अब स्पैरो की मम्मा उसे क्या कहती है कि जो स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें खा जाते हैं, इसीलिए वो हमारे कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। ठीक है। इसी तरह शहर के दूसरे हिस्से में स्नेक रहता था। ठीक है। अब स्नेक के पापा भी मॉर्निंग में उसका स्कूल बैग पैक कर रहे होते हैं और अपने बेटे से वो क्या कहते हैं कि बेटा देखो आज स्पेशल डे है। क्यों है? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए टिफ़िन में चिड़ियों के अंडे रखे हैं, बर्ड्स एग रखे हैं। ठीक है, वो आपका आज क्या है? लंच है। तो स्नेक क्या कहता है? बट आई हेट एग्स पापा। अब वो जो स्नेक होता है वो स्नेक क्या कहते हैं कि पापा मुझे ये एग्स पसंद नहीं है, हम हमेशा एग ही खाते हैं। तो उसका पापा कहता है हाँ बेटा, हम हमेशा एग ही खाते हैं, इसलिए कभी ऐसा मत बोलो कि मुझे एग पसंद नहीं है। अब तुम आराम से अपने स्कूल जाओ। और हाँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें किससे दूर रहना है? स्पैरो से। ठीक है। अब देखो स्पैरो की मम्मा स्पैरो को क्या बताती है कि तुम्हें किससे दूर रहना है? स्नेक से दूर रहना है। और स्नेक के जो पापा होते हैं वो क्या सिखाते हैं स्नेक को कि तुम्हें किससे दूर रहना है? स्पैरो से दूर रहना है। ठीक है। स्पैरोज आर डिफरेंट, यू कांट बी फ्रेंड्स विद योर फूड। क्या समझाते हैं स्नेक के पापा कि स्पैरोज अलग तरीके की होती हैं, तुम्हें कभी भी स्पैरोज से दोस्ती फ्रेंडशिप नहीं करनी, बिकॉज इट इज़ योर फूड, वो तुम्हारा खाना है। ठीक है। नाउ मूव टू सेकेंड पैराग्राफ। When Snake met Sparrow at school, they knew. Your mama said, asked Snake. Sparrow nodded. Your papa too? Snake nodded. अब क्या होता है? अब वो दोनों स्कूल में मिलते हैं। जब स्कूल जाते हैं स्नेक और स्पैरो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और वो दोनों ही जानते हैं कि उनके पापा मम्मी ने उनको क्या सिखाया है, कुछ ना कुछ ज़रूर बोला होगा। तो स्नेक पूछता है स्पैरो से कि तुम्हारी मम्मा ने कुछ कहा आज भी? तो स्पैरो नॉडेड। स्पैरो नॉडेड, मीनिंग ऑफ नॉडेड है इसके मतलब सिर हिलाना। ठीक है। तो स्पैरो सिर हिलाती है कि हाँ मेरी मम्मा ने मुझे आज कुछ कहा है। फिर स्पैरो स्नेक से पूछती है योर पापा टू? आपके पापा ने भी कुछ बोला? तो स्नेक भी क्या करता है? नॉडेड। स्नेक भी अपना सर हिलाता है। आवर पेरेंट्स आर रॉन्ग, स्पैरो सेड। स्पैरो क्या बोलती है कि हमारे मम्मा पापा क्या है? गलत हैं। ठीक है। Snake, let's show them that we are more similar than different. Great idea, said Sparrow. अब स्नेक क्या कहता है कि चलो हम अपने मम्मी पापा को प्रूव करके दिखाते हैं कि हम दोनों क्या हैं? बहुत सेम है, रादर देन डिफरेंट। हम अलग नहीं हैं बल्कि हम सेम हैं। ठीक है। तो स्पैरो क्या कहती है? ग्रेट आइडिया, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। She pulled out a sheet of paper and drew 2 circles on it. In the yellow part of the left circle, we put down just sparrow things. In the blue part of the right circle, just snake things. These are all the ways in which we are different, said Sparrow. अब देखो स्पैरो क्या कहती है? स्पैरो अपनी स्कूल बैग से एक नोटबुक निकालती है और उसमें वो क्या करती है? 2 सर्कल्स ड्रॉ करती है। वेन डायग्राम आपको सिखाया था ना, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो वैसा ही एक वेन डायग्राम टाइप का बनाती है, 2 सर्कल्स बनाती है। ठीक है। और वो क्या कहती है स्नेक से कि हम येलो पार्ट ऑफ द लेफ्ट सर्कल, जो लेफ्ट सर्कल का येलो पार्ट होगा उसमें हम क्या लिखेंगे? जो मेरी चीज़ें हैं, जस्ट स्पैरो थिंग्स, मतलब जो मेरी चीज़ें हैं सिर्फ वो लिखेंगे। और इन द ब्लू पार्ट ऑफ राइट सर्कल, और जो राइट साइड में ब्लू पार्ट होगा सर्कल का, उसमें जस्ट स्नेक थिंग्स, जो तुम्हारी चीज़ें होंगी सिर्फ वही चीज़ें लिखेंगे। दीज आर ऑल द वेज इन विच वी आर डिफरेंट। तो हम इन दोनों सर्कल्स में लेफ्ट और राइट में ये लिखेंगे जिस वे में हम दोनों डिफरेंट हैं, मतलब हम दोनों अलग अलग क्यों हैं, वो चीज़ें हम लिखेंगे इन सर्कल्स में। राइट। स्नेक वॉज पजल्ड। अब स्नेक उसकी बात सुनकर थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है। आई थॉट वी वॉन्टेड टू थिंक ऑफ वेज इन विच वी आर द सेम. That's what the green part in the middle is for, smiled Sparrow.
अब स्नेक कहता है कि हम दोनों ने ये नहीं लिखना कि हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं, बल्कि हमें तो ये लिखना है ना कि हम किस चीज़ में सेम है, ठीक है, ताकि हम अपने पेरेंट्स को बता सकें कि हम लोग अलग अलग नहीं है, वी आर द सेम, ठीक है। तो जो स्पैरो होती है वो कहती है हम ये भी लिखेंगे कि हम दोनों किस तरह सेम सेम है, और वो चीज़ हम कहाँ पर लिखेंगे, जो हम दोनों के हमने जो सर्कल्स बनाया, 2 सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं, उनका जो कॉमन पार्ट होगा दैट इज़ द ग्रीन पार्ट इन द मिडल, हम वहाँ पर अपनी सेम सेम वाली थिंग्स लिखेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी लुक, सेड स्पैरो। सेम सेम और डिफरेंट। अब वो स्पैरो कहती है सबसे पहले ये लिखते हैं हम लोग कि हम कैसे दिखते हैं, दोनों हम लोग कैसे दिखते हैं, सेम सेम दिखते हैं या डिफरेंट दिखते हैं। तो स्नेक क्या बोलता है, वेरी डिफरेंट। स्नेक बोलता है कि हम दोनों तो बहुत डिफरेंट दिखते हैं। आई एम लॉन्ग, हेयरलेस एंड थिन, यू आर स्मॉल, प्लम्प एंड सॉफ्ट। तो स्नेक कहता है कि हम दोनों दिखने में बहुत डिफरेंट हैं। मैं बहुत लंबा हूँ, हेयरलेस हूँ, मेरे ऊपर कोई बाल नहीं है, बहुत पतला हूँ, जबकि तुम क्या हो, बहुत छोटी सी हो, सॉफ्ट सॉफ्ट हो और तुम्हारे ऊपर बहुत सारे हेयर्स हैं, ठीक है। नाउ हाउ डू वी मूव, शी आस्क्ड। अब स्पैरो पूछती है कि अच्छा अब ये बताओ कि हम मूव कैसे करते हैं। तो स्नेक बोलता है वेरी डिफरेंटली, हम मूव भी बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं। यू फ्लाई वाइल आई स्लिथर, लेट्स सी नाउ व्हाट डू वी ईट, सेड स्पैरो। अब स्पैरो क्या बोलती है कि अच्छा अब हमने ये देख लिया कि हम दोनों चलते कैसे हैं, ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं, ठीक है। तो स्नेक वेरी डिफरेंट थिंग्स, स्नेक सेड वेरी डिफरेंट थिंग्स, स्नेक्स आइज फिल्ड विथ टीयर्स। अब स्नेक रोते हुए कहने लगता है कि हम लोग खाते भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। I know, said Sparrow soothingly, but now she looked glum too. Seed and grass, she muttered, and she drew them in the yellow crescent. Frogs and rats, she sputtered and drew them in the blue crescent. तो स्पैरो कहती है कि हम लोग सीड्स खाते हैं एंड ग्रास खाते हैं, और जो आप लोग हो स्नेक हो वो क्या खाते हैं, फ्रॉग्स एंड रैट्स खाते हैं, ठीक है। तो वो दोनों जो स्पैरो होती है वो इन चीज़ों को क्या लिखती है, डिफरेंट डिफरेंट क्रेसेंट्स में लिख देती है। एक येलो क्रेसेंट में, क्रेसेंट का मीनिंग अभी हमने पढ़ा था, क्रेसेंट का मीनिंग क्या होता है, कर्व लाइक, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो ये वेन डायग्राम देखो, एक येलो पार्ट है और एक आपका ब्लू पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो येलो पार्ट में वो क्या लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। येलो और ब्लू पार्ट्स में वो क्या लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। देखो येलो पार्ट में क्या है, जो स्पैरो है उससे रिलेटेड थिंग्स लिखी गई हैं, और ब्लू पार्ट में स्नेक से रिलेटेड थिंग्स लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखो स्पैरो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। स्नेक कैसा होता है, थिन होता है। स्पैरो फ्लाई करती हैं, और जबकि स्नेक क्या है, स्लिथर करते हैं, रेंगते हैं। स्पैरोज क्या खाती हैं, सीड्स एंड ग्रासेस, एंड फ्रॉग्स क्या खाते हैं, रैट एंड फ्रॉग्स। तो ये चीज़ें उन्होंने अलग अलग क्रेसेंट में लिखी, जो दोनों क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी दोनों के बीच में, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Hooray, Snake and Sparrow jumped. It was Headmaster Elephant. Why the long faces, kids? He asked kindly. Oh, sir, sobbed Snake. My papa and Sparrow's mama say we can't be friends because we are different. We wanted to show them we were more same than different. Sir, said Sparrow, but it isn't working. Headmaster Elephant looked at the circles a long time. Then he began to laugh. Snake and Sparrow stared at him. What was so funny? अब इतने में क्या होता है, जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं और थोड़ा स्पैरो और स्नेक क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि उन दोनों के बीच में तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ही आ रही हैं, सेम थिंग्स तो आ ही नहीं रही। तो ऐसे हम कैसे प्रूव करेंगे अपने मम्मा पापा को कि हम सेम हैं। तो इतने में क्या होता है, उनके जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, कौन होता है उनके स्कूल का हेडमास्टर, यस उनके स्कूल के हेडमास्टर कौन होते हैं, एक एलिफेंट होते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। वाई द लॉन्ग फेसेस किड्स, अब वो उन दोनों से पूछते हैं कि बच्चों आप दोनों के मुंह क्यों इतने, मतलब आपने ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ, इतने सैड फेस क्यों बनाए हुए हैं। तो स्नेक जो है थोड़ा रो के बोलता है सर से
कि सर मेरे पापा और स्पैरो की जो मम्मा हैं वो कहते हैं हमसे कि आप दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते क्योंकि हम दोनों क्या हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। अब इतने में ही स्पैरो क्या बोलती है कि वी वॉन्ट टू शो दैम वी वर मोर सेम सेम दैन डिफरेंट सर। अब वो बोलती है कि सर बट वी वॉन्ट टू प्रूव आवर पेरेंट्स रॉन्ग, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम दोनों सेम सेम हैं, हम डिफरेंट नहीं हैं। तो हेडमास्टर वो उनकी जो उन्होंने सर्कल ड्रॉ किया होता है, ठीक है, उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि पर ये ऐसे काम नहीं करेगा। जो उन्होंने सर्कल देखते हैं ना, सर्कल को देख के वो थोड़ा हंस भी जाते हैं, उनके हेडमास्टर जो होते हैं हंस भी जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करो। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। यू आर डूइंग दिस ऑल रॉन्ग, लेट मी हेल्प यू, व्हाट डू यू लाइक डूइंग बेस्ट, आस्क्ड हेडमास्टर। अब हेडमास्टर कहते हैं मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप ये चीज़ें गलत तरीके से लिख रहे हो, मैं बताता हूँ आप कैसे करो। तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि आप दोनों को क्या करना पसंद है, ठीक है। तो स्नेक बोलता है प्लेइंग एंड चैटिंग सर, स्पेशली विथ स्पैरो। एंड यू स्पैरो? चैटिंग एंड प्लेइंग सर, सेड स्पैरो। अब देखो पहला स्नेक क्या कहता है कि सर मुझे तो खेलना और बातें करना पसंद है, स्पेशली विथ स्पैरो, मतलब स्पैरो के साथ ही मुझे खेलना और बातें करना पसंद है। अब हेडमास्टर स्पैरो से पूछते हैं स्पैरो तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। तो स्पैरो भी सेम रिप्लाई करती है कि सर मुझे भी खेलना और बातें करना पसंद है, लेकिन सिर्फ स्नेक के साथ, ठीक है। राइट, सेड हेडमास्टर एलिफेंट, यू लाइक डूइंग द सेम थिंग्स, एंड ही ड्रू समथिंग इन द ग्रीन पार्ट। अब देखो उन दोनों को एक साथ खेलना पसंद था। यहाँ पे देखो आप फिगर में हेडमास्टर ने उनसे पूछा कि आप दोनों को क्या पसंद है, तो दोनों ही बोलते हैं कि हमें बातें करना और खेलना पसंद है एक दूसरे के साथ। तो हेडमास्टर वहाँ पे यहाँ पे ग्रीन पार्ट में जो दोनों के बीच में सेम था वो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट मेक्स यू हैप्पी किड्स, व्हेन मिस लेट्स मी सिट नेक्स्ट टू हर, सर सेड स्नेक स्माइलिंगली। सेम सेम सर, क्लैप्ड एंड सेड स्पैरो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछते हैं हेडमास्टर, वो बोलते हैं कि बच्चों आपको क्या चीज़ खुश करती है, आपको किस चीज़, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। तो जो स्नेक होता है, स्नेक क्या कहता है कि जब मुझे मैडम, मेरी स्कूल की टीचर मुझे स्पैरो के साथ बिठाती हैं क्लास में तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो तभी स्पैरो भी क्या करती है, क्लैपिंग बजाकर कहती है कि सर मुझे भी यही चीज़ पसंद है कि मुझे स्नेक के साथ बैठना पसंद है, ठीक है, क्लास में। तो देखो यहाँ पर जो हेडमास्टर है वो यहाँ पर ये दूसरी चीज़ भी मेंशन कर देते हैं ग्रीन पार्ट में, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ खेलना और बैठना उन्हें पसंद है। नाउ आहा, said headmaster elephant, you both have the same happy place, green. All right, what makes you sad, snake and sparrow? That our parents say we should stay away from each other, sir, sighed snake and sparrow. Now the next question Mr. Headmaster asked from sparrow and snake is कि what makes you sad। अब वो क्या पूछते हैं कि बच्चों अब आप ये बताओ कि आपको कौन सी चीज़ दुखी करती है। तो जो स्पैरो और स्नेक होते हैं वो बोलते हैं कि हमें ये चीज़ दुखी करती है, बुरा लगता है ये सुन के कि जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते बिकॉज वी आर डिफरेंट। ओके, हेडमास्टर एलिफेंट फ्रॉन्ट, यू आर बोथ सैड, he said, for the same reason your parents don't let you choose your friends, so green again। अब हेडमास्टर कहते हैं देखो आप दोनों दुखी भी इसीलिए होते हो क्योंकि दोनों के पास सेम रीज़न है कि दोनों के पेरेंट्स ही क्या करते हैं, आप दोनों को साथ में रहने नहीं देते, इसीलिए वो इस चीज़ को भी कहाँ पर पुट कर देते हैं, ग्रीन पार्ट में पुट कर देते हैं कि ये चीज़ भी आप दोनों के बीच में क्या है, सेम है, ठीक है। सो ग्रीन अगेन, हेडमास्टर एलिफेंट आस्क्ड, who do you think is the best kind of friend? Someone who loves you, began Snake. Even though you are different, finished Sparrow. So you both agree that a true friend loves you no matter what. That makes 4 same and only 3 different. Same wins, said Headmaster Elephant. Hooray, said Snake and Sparrow. थैंक यू हेडमास्टर एलिफेंट। अब क्या होता है, लास्ट वो पूछते हैं हेडमास्टर कि अच्छा ये बताओ कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि कौन सी फ्रेंडशिप सबसे अच्छी होती है। तो क्या होता है, स्नेक क्या बोलता है, समवन हु लव्स यू इवन दो यू आर डिफरेंट, फिनिश स्पैरो। देखो स्नेक बोलना स्टार्ट करता है कि सर जो आपको प्यार करे
कैसे टाइम में? इवन दो यू आर डिफरेंट, भले ही आप डिफरेंट हो फिर भी आपको प्यार करे, वही आपका अच्छा फ्रेंड होता है। इस टाइप की ही फ्रेंडशिप सबसे अच्छी फ्रेंडशिप होती है। दोनों ने ये आंसर दिया, स्पैरो और स्नेक ने। तो अब उनके सर क्या बोलते हैं? सर ने देखा कि इन दोनों की थिंकिंग भी क्या है, बिल्कुल सेम है, तो वो इस चीज़ को भी ग्रीन पार्ट में पुट कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे स्नेक और स्पैरो की कितनी चीज़ें थी, कितनी ऐसी चीज़ें थी कॉमन, सेम सेम थी। देखो काउंट करो, वेट, जस्ट वेट, हाँ देखो कितनी चीज़ें थी जो स्नेक और स्पैरो की सेम सेम थी। 1 2 3 एंड 4। तो सेम सेम थिंग्स कितनी थी? 4। और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कितनी थी दोनों की? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो सेम थिंग्स उनकी 4 थी और डिफरेंट थिंग्स कितनी थी? 3। तो कौन सी चीज़ें उनकी ज़्यादा हुई? कौन सी चीज़ें ज़्यादा हुई? उनकी सेम थिंग्स चीज़ें ज़्यादा हुई। ठीक है, तो इट मीन्स के वो दोनों सेम सेम थे। ठीक है, वो डिफरेंट नहीं थे। तो ये सुन के दोनों बच्चे जो होते हैं स्पैरो और स्नेक क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी। ठीक है, आपको ये स्टोरी रीड आउट करनी है घर पे। ठीक है, एंड यू हैव टू लर्न द वोकैबुलरी वर्ड्स। ओके, द मीनिंग ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।